میرے تایا جان کافی عرصے سے لاہور مقیم تھے۔ یہ کافی عرصہ پرانی بات ہے، میری شادی سے بھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، اور ایک تائی جان تھی جو کہ بہت زیادہ ہم سے پیار کرتی تھی۔ بیٹی کے بہت اصرار کرنے پہ میرے میٹرک کے پیپر ختم ہوئے تو اس نے مجھے کہا کہ تم لاہور ہمارے پاس چھٹیاں گزارنے آ جاؤ۔ میرے دل میں بھی آئی کہ کتنا اچھا ہو میں بھی لاہور کی سڑکوں پہ گھوموں پھروں، مینار پاکستان دیکھوں، شاہی قلعہ دیکھوں۔ خیر، ابا سے بات کی تو ابا مان گئے۔ چھٹیاں ہوئی تو مجھے ابا لاہور چھوڑ آئے کہ چلو وہاں پہ تھوڑا سا یہ تایا سے پڑھ بھی لے گی، کیونکہ میرے تایا جان ایک بہت اچھے جرنلسٹ تھے اور ان کی کافی وہاں پہ اچھی عزت بنی ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ کینیڈا میں مقیم تھا، اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا۔ پہلے تایا ابا کی خواہش تھی کہ وہ میرا رشتہ لیں گے، لیکن پھر جب دیکھا کہ ان کا بیٹا کینیڈا سے واپس آیا ہے تو وہ ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت گوری کو بھی لے آیا ہے۔ گوری جو کہ بہت خوبصورت تھی، انگلش بولتی تھی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر تھی، ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ خیر، میں تایا کے گھر بڑی خوش چھٹیاں گزار رہی تھی۔ اب تایا کا بیٹا اور اس کی بہو بھی وہاں موجود تھی، دونوں بہت خوش اپنے ہاسپٹل میں جاتے، کلینک چلاتے، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ تایا جی بھی بہت اچھے جرنلسٹ تھے، اکثر ان کے پاس بہت سارے لوگ ملنے ملانے کے لیے آتے۔ تائی جو بہت ہی پڑھی لکھی خاتون تھی، صنعت میں اچھا اپنا کام کرتی تھی، لیکن پھر انہوں نے آہستہ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور گھر داری کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کے رشتے کے لیے اچھی کوشش کر رہی تھی۔ آگے شروع کرنے سے پہلے کہانی کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور تاکہ میں ہر روز آپ لوگوں کے لیے اچھی دلچسپ اور سچی کہانیاں لا سکوں۔ یہی آپ لوگوں کا میرے لیے تحفہ ہوگا۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تایا کا بیٹا پاکستان میں شفٹ ہو گیا اور اس کی گوری بیگم بھی پاکستان میں شفٹ ہو گئی، 5-6 ماہ تو بہت اچھے گزر گئے۔ میں کافی عرصہ وہاں رہی، 2-3 مہینے چھٹیاں وہاں گزاری۔ پھر ابا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے واپس گھر آنا پڑ گیا، لیکن تائی کی بیٹی سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی اور وہ گھر کے معاملات بتاتی رہتی تھی۔ اب کچھ ایسا ہوا کہ جو تایا کا بیٹا تھا، اس کی اور اس کی بیگم کی ان بن رہنی شروع ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن گوری کیونکہ باہر سے آئی تھی، اس کو پاکستان کا ماحول اس طرح سے نہیں اچھا لگ رہا تھا جس طرح سے لگنا چاہیے تھا، تو وہ یہاں پہ تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں مشکل اس کو پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے تایا کے بیٹے سے کہا کہ ہم باہر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں رہ کے غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور اسی نیت سے اس نے پڑھا تھا۔ پھر تایا کا بھی اصرار تھا، ایک بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پاکستان میں رہو اور اپنے کام کو جاری رکھو۔ دونوں میں اتنی انبن ہوئی کہ گوری کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ کے باہر چلی گئی۔ بیٹا بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع ہو گیا اور ڈپریشن میں چلا گیا۔ اچھی تعلیم، اچھا ہونے کے باوجود، ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس سے وہ گوری کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ اب جو تائی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو کہ 10-12 سال سے ان کا گھر کا کام کرتی تھی۔ تائی نے بڑے اس کو سمجھایا اچھی طریقے سے، اسلامی طریقے سے، لیکن بیٹا کسی طریقے سے بھی ماننے کو تیار نہ تھا اور اس کو اپنی گوری بیگم کی یاد ستاتی تھی، کیونکہ اس میں سے اس کا ایک بچہ بھی تھا اور وہ کہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ واپس پاکستان آ جائے۔ اب تائی بھی پریشان رہتی۔ جو گھر میں ملازمہ تھی، اس نے ایک دن بتایا کہ باجی جی چھوڑیں، ایک بہت بڑے عالم ہمارے گاؤں میں موجود ہیں، ان کی بہت کرامات ہیں، اللہ والے بندے ہیں، بہت اچھی جو ہے نا ان کے پاس چیزیں ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آپ کا مسئلہ تو چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔
ताई को पहले ये बात सुन के बड़ी हंसी आई और फिर ताई ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है, जो इलाज किसी के पास भी नहीं, कभी कोई परदेश में गया भी वापस आ सकता है। उसने कहा बाजी जी, हमारा तो डॉक्टर, कोई भी मसला हो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, ना ही हम किसी बड़े तबीब के पास गए हैं, ना ही हम किसी और पंचायत में बैठे हैं। हम तो वो पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब को अपना मसला बताते हैं, ठीक 2 या 3 दिन में पीर साहब की करामात होती है और मसला हल हो सकता है। 40 साल हो गए हैं गांव में रहते हैं उनके बड़े, उसके बाद आप पीर साहब गद्दी नशीन हैं, चिल्ले काटे हुए हैं, बड़ी पहुँच है उनकी। ताई पहले पहले तो उसकी बातों का मजाक उड़ाती रही, फिर जब बेटे के हाथों मजबूर हुई और लोगों ने कहा, किसी ने कहा नज़र लग गई, किसी ने कहा तवीज़ गंडा हो गया। हालांकि ताई और ताया तो बड़े पढ़े लिखे थे, इन बातों पे तो यकीन करते नहीं थे, लेकिन जब वो काम वाली ने उनका ब्रेन वॉश किया, डेली वो नई नई करामात बताती, तो ताई ने सोचा कि क्यों ना पीर साहब से मिला जाए। खैर ताई गाड़ी में बैठी, साथ में मुलाजमा को लिया और पीर साहब के डेरे में पहुंच गई। देखा तो बड़ा अजीब सा मंजर था। बाहर एक जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा तालाब टाइप था। वहाँ पे लोग नहा रहे थे, नहा के वाइट कलर के कपड़े पहन के लोग आते थे, वहाँ पे नहाते थे, घर से एक पुराना सूट लाते थे, नया सूट उधर ही उतारते थे और वापस घर को लौट जाते थे। ठीक 2 या 3 दिन के बाद खुशखबरी का डब्बा और मिठाई का डब्बा और खुशखबरी लेके पीर साहब के पास चले जाते थे। ताई पीर साहब के पास अभी दाखिल ही हुई थी तो उसने कहा, तुम्हारा बेटा दुख में है, तुम्हारी बेटी का नसीब खराब हो रहा है। ताई बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, अभी तो मैं इसके पास पहुंची भी नहीं, तो इसको सारी बातें कैसे मालूम हो गई। खैर उसने ऐसी बातों का जाल बिछाया कि ताई उसकी बातों में आती गई। खैर आहिस्ता 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 ताई ने सारा माजरा कुछ अपने घर का बता दिया। हालांकि ताई को ये बात याद ही न रही कि मुलाजमा ने ऑलरेडी उसको सारी बात बता दी थी कि ऐसे मेरी बाजी आएगी, वो आपके पास अपना मसला बयान करना चाहती है। मुलाजमा क्योंकि दिल की साफ़ औरत थी, उसके दिल में कोई नहीं था। वो इन औरतों को थोड़ी सी आदत होती है, ये जो घरों में काम करने वाली औरतें होती हैं ना, ये थोड़ी सी आदत रखती हैं कि वो फ़लाँ बेचारी उसका ये मसला है, फ़लाँ बेचारी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की। अब ताई के दिल में बात आई कि ये तो वाकई पीर साहब बहुत पहुँचे हुए हैं। उन्हीं दौरान में जो है ना, बेटे ने खुशखबरी सुनाई कि जो गोरी है ना, उसने मेरे से रब्ता कर लिया है, उसका भी वहाँ दिल नहीं लगा। बच्चा जो उसको बहुत ज़्यादा प्यारा था बेटे को, उसने भी बाप से रब्ता कर लिया है, तो वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 माह रहे हैं, लेकिन अब वो कहती है कि मुझे एहसास हो गया। ताई बहुत हैरान हुई कि ये तो वाकई ही पीर साहब के करामात हैं। खैर 2-3 हफ्ते ऐसा सिलसिला चलता रहा। ताई जाती, पीर साहब से मिलती, उनको अपने मसाइल बताती। मसाइल हल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, ताई के दिल को बड़ा सुकून था। कुछ अरसा गुजरता गया, इन सारी बातों का ताया जान को बिल्कुल इल्म नहीं था। पीर साहब ने कहा कि आप अपना बेटा और बेटी को भी ज़रूर हमारे जो है ना आस्थाने पे लेके आएँ, हम उनको दम करेंगे ताकि उनके तमाम मसाइल, जादू टूना सब ख़त्म हो जाएं। ताई ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे शौहर भी आ जाएं, लेकिन जो मेरे शौहर हैं वो इस मामले में पड़ते नहीं, वो कुछ और टाइप के हैं, तो मैं उनको इधर लाना नहीं चाहती। उसने कहा कि नहीं, आप सिर्फ अपने बच्चों को लाएं, खुद आएं। आपने करना क्या है कि आपने एक वाइट सूट नया सिलाना है, अपने बच्चों को भी कहना है, जो जो आपके घर के अफराद हैं वो वाइट सूट पहन के आपने इधर आना है, और साथ में घर में से एक पुराना सूट भी लेके आना है। जब आप इधर आएंगे तो ये तालाब के अंदर से गुज़र के आपने वो वाइट सूट गीला करना है। साथ ही हमारे वाशरूम है, वाशरूम में जाके आपने वो वाइट सूट बदलना है, और बदलने के बाद आपने वो जो पुराना सूट है वो पहन लेना है और वाइट सूट उधर ही उतार देना है। ताई बड़ी हैरान हुई। ताई ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा मामला है, लेकिन कुछ ऐसी रूहानी बातें बताई गई कि जिससे ना वो ताई को उन पर यकीन हो गया। उसके बाद ताई ने ऐसा ही किया, बच्चों को लेके वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद जो है ना इस तरह करके वो वापस लौट आए।
ताया जो काफ़ी अरसे से ये सारी मामला देख रहे थे, लेकिन खामोश थे कि कुछ अरसा खुद ही ये बता दे कि इनका रोज़ का आना जाना किधर है। ड्राइवर ने बता चुके थे ताया जान को कि ये आजकल एक ऐसे करामाती पीर साहब के पास जाते हैं जो दम करता है। उन्हीं दौरान गौरी भी वापस आ चुकी थी, बेटा भी खुशहाल हो गया। एक दिन डाइनिंग टेबल पे बैठे ताया ने थोड़ी सी बात छेड़ी और फिर ताई जान ने बताया कि ये तो मसला कभी हल ना होता अगर वो पीर साहब हम पे दम दरूद ना करते और हमारे घर के जादू ना निकालते और तवीज़ ना निकालते और बेटे को इस तरह सुकून ना आता। ताया जान ने खामोशी से बात सुनी और फिर मसले का हल निकाला। ताया जान ने कहा कि मैं भी उस करामाती पीर साहब से मिलना चाहता हूँ जिनकी इतनी पहुँच है। ताया जान अपने चंद दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा कि वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज़ फोकस हो रही है। ताया जान का जो दिमाग था वो जो है ना उसमें काम कर रहा था। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ अजीब मामला ज़रूर है, कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कि छुपाई जा रही है। और फिर ताया जान ने अपने कुछ जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोगों को वहाँ तहकीक पे लगाया तो मालूम हुआ कि वो पीर खाना सिर्फ एक फ्राडिये का अड्डा था। वो क्या करता था, जो लड़कियाँ वहाँ पे नहा के कपड़े पहन के वाशरूम में जाती, वाशरूम में कैमरे लगा के उनकी फहाशी वीडियो बना लेता और फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करता। और जो सफ़ेद लिबास उतार के जो वो उधर रख के छोड़ के वापस आ जाती, उसने बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में बुटीक खोल रखी थी। वो नए कपड़े उठाता, उनको दोबारा लॉन्ड्री में वॉश करवाता, उनको ड्राई क्लीन करवाता और वही कपड़े फिर सस्ते दामों पे सेल करवाता। उसने अपने कारोबार करके बाहर के मुल्कों में भी अपनी जायदादें बना ली थी। बहुत दिनों के अंदर वो अमीर हो चुका था। फिर ताया ने उस पे पुलिस हमला करवाया और वो पकड़ा गया और वो सारी बातें उसने मानी कि किन किन शहरों में उसके अड्डे हैं जहाँ पे उसने बुटीक खोल रखी हैं और किन किन लड़कियों को वो ब्लैकमेल करके अब तक खा चुका है। ये होते हैं जाली पीर के अंजाम। बहुत सारी औरतें इन बाबों के चक्करों में पड़ के घर के माहौल, अल्लाह ताला की तरफ से तो मसले खुद ही हल हो जाने होते हैं। अल्लाह ताला की मदद हो, कुरान की आयत आप पढ़ें तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम कभी कभी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जहालत में डूब जाते हैं और इन जाली पीरों के चक्करों में आके अपना सब कुछ दे बैठते हैं। बराए करम इनसे बचें। मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ये सच्ची स्टोरी है, इसको ज़रूर लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग इस जाली पीरों के शिकार हैं वो इससे बच जाएं और उनका जो घर में जो रिज़्क है वो इनसे बच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।